پاکستان سمیت دنیا بھر میں محنت کشوں کا دن اس عہد کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ شگاگو کے محنت کشوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا اور ناانصافیوں کے خلاف مزدوروں کی آواز میں آواز ملائی جائے گی۔ ملک بھر میں ریلیاں اور سیمینارز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا محنت کش طبقے کی سماجی اور معاشی بہبود یقینی بنانے کا عزم۔ مزدوروں کے مسائل کے بروقت حل اور ریلیف کے لیے خودکار اور مربوط نظام تیار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا یوم مئی پر گفتگو۔ معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنے کے باوجود محنت کشوں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کے ساتھ انہیں ہنر فراہم کرنے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا یوم مئی پر پیغام۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ محنت کشوں، مزدوروں اور کسانوں کی آواز اٹھائی۔ مزدور خوشحال تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ مزدوروں اور کسانوں کو اسمبلیوں میں نمائندگی دلائیں گے۔ آئندہ الیکشن میں مینڈیٹ ملا تو ملک بھر کے محنت کشوں کے لیے بے نظیر مزدور کارڈ جیسی اسکیمیں شروع کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا مزدوروں کے عالمی دن پر پیغام۔ مسلم لیگ نون کا مزدوروں کے عالمی دن پر لاہور میں کنونشن۔ سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز خطاب کریں گی۔ مزدوروں کے حقوق کے تحفظ، فروغ اور مستقبل کے اقدامات پر بات چیت ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ موجودہ حالات میں اداروں میں بیٹھے افراد کو سچ بولنا ہی پڑے گا۔ انصاف کی فراہمی حکومت وقت کی نہیں بلکہ اداروں میں بیٹھے افراد کی ہے۔ آج بھی اداروں میں بیٹھے افراد کے مفادات عمران خان سے وابستہ ہیں۔ ملک کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی۔ لائٹ ڈیزل اور مٹی کا تیل 10 روپے فی لیٹر سستا۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رہے گی۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ سوڈان سے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 93 پاکستانی شہری اسلام آباد پہنچ گئے۔ حکومت سوڈان سے تمام پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کو یقینی بنائے گی۔ اب تک 1200 میں سے 500 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ انجینئر امیر مقام اور وفاقی وزیر ساجد توری کی میڈیا سے گفتگو۔ سیکیورٹی فورسز باجوڑ، میمن اور خیبر اضلاع میں صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں۔ 50 سے زائد بنیادی صحت کے مراکز، کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز اور ڈسپنسریاں تعمیر۔ تینوں اضلاع میں قلیل مدت میں 100 سے زائد فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں نہتے مسلمانوں کی زندگی جہنم بنا دی۔ G20 اجلاس سے قبل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں تیزی۔ رات کو گھروں میں داخل ہو کر مردوں، خواتین اور بچوں پر تشدد معمول بن گیا۔ حریت قیادت کا عالمی برادری سے ظالمانہ اقدامات رکوانے کا مطالبہ۔ بھارتی میڈیا کا ایک اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا زمیں بوست۔ تالے کے ساتھ بند قبر کو پاکستان سے منسوب کرنے کی کوشش۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستانی والدین ریپ کے خوف سے بیٹیوں کو قبروں کو تالے لگا رہے ہیں۔ بھارتی صحافی محمد زبیر کی تحقیقات کے بعد قبر بھارتی شہر حیدرآباد میں پائی گئی۔ یوں پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک اور بھارتی چال ناکام۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں سیاحوں کی جیپ دریا میں جا گری۔ 2 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ جیپ میں 12 سیاحوں سمیت 14 افراد سوار تھے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری۔ حادثہ فنی خرابی اور سڑک کی خستہ حالی کے باعث پیش آیا۔ سوڈان میں فائر بندی کے باوجود متحارب گروپوں کے درمیان جھڑپیں۔ دارالحکومت خرطوم سمیت دیگر شہروں میں شدید گولہ باری۔ ہلاکتوں کی تعداد 528 ہو گئی۔ 4600 سے زائد زخمی۔ اینٹونیو گوترس کی خونریزی کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر مذاکرات کی اپیل۔
कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नारान के करीब पिघलने वाले ग्लेशियर रोड से हटाने का काम जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज, दोनों टीमों की शहर कायद में डेरे। तीसरा मैच बुध के रोज नेशनल बैंक एरिना में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। मुकाबले देखिए PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं मुकद्दस इफ्तिखार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं, आज दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। नाइंसाफियों के खिलाफ मजदूरों का ये आलमी दिन शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल हल करने के लिए आवाज़ उठाना और उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। यौम मई के हवाले से मुल्क भर में रैलियां भी निकाली जा रही हैं और तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेहनत कश तबके की समाजी और माशी बहबूद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। आलमी यौम मजदूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की तरक्की में मेहनत कशों के अहम किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मजदूर और आजर पैदावारी अमल में शराकतदार हैं और उनका ताउन और दोस्ताना ताल्लुक मजमूई समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मेहनत कशों के हालात को बेहतर बनाने और उन्हें बेहतर रिहाइश, तालीम की सहूलियात और सेहत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनकी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मजदूरों के मसाइल के बर वक्त हल और रिलीफ की फराहमी के लिए खुदकार और मरबूत निज़ाम तैयार कर रही है। इसके साथ लेबर मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पेशा वाराना तरबियत और हुनर के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। यौम मई पर अपने पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि माशी खुशहाली में अपना हिस्सा डालने के बावजूद मेहनत कशों को मुतादिद मसाइल का सामना है। गैर महफूज माहौल, मजदूरी के गैर मुनसिफाना तरीके, कम उजरत, अदम तहफ़्फ़ुज़, काम की जगह पर ख़वातीन की हरासगी समेत शामिल हैं। सदर ममलकत ने कहा, पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी लेबर फोर्स और नौजवानों की तादाद है जिसे जदीद हुनर फ्राहम करने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें उनके फलाह बहबूद के लिए इक़दाम के साथ उन्हें हुनर फ्राहम करने की कोशिशें जारी रखेंगी। सदर ममलकत ने आजिरों से दरख्वास्त की है कि मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। यौम मई पर अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मजदूरों की जमात है और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। उन्होंने कहा कि कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने लेबर रिफॉर्म्स के जरिए मेहनत कशों के साथ होने वाली नाइंसाफियों का अजाला किया। इसी पॉलिसी पर अमल करते हुए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बेनज़ीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत मजदूरों को सरकारी सनती इदारों में शराकतदार बनाया। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मेहनत कश तबका बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दे ताकि उनके मसाइल हल हो सकें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों के हुकूक पर किसी मसलहत का शिकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मजदूर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। आइंदा इलेक्शन में अगर आवाम ने मैंडेट दिया तो मुल्क भर के मेहनत कशों के लिए बेनज़ीर मजदूर कार्ड जैसी स्कीमें शुरू करेंगे। मुआशरे की रीढ़ की हड्डी मेहनत कश हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज का दिन शिकागो के शहीदों को खराज अकीदत और पाकिस्तान के मेहनत कशों को सलाम पेश करने का दिन है। उन्होंने कहा कि इमरान खान दौर में जितना जुल्म मजदूरों, किसानों, तनख्वाहदार तबके पर हुआ मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ट्वीट में कहा कि कन्वेंशन पार्टी के मरकजी दफ्तर 180H मॉडल टाउन लाहौर में मुनक़िद होगा, जिसमें मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और मुस्तक़बिल के इक़दामात की बात होगी। तो कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर के औकात। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मजदूरों की कुर्बानियों और हुकूक को उजागर करने के लिए आज आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक।
अपना तो फकत है यही जीने का करीना, हाथों में है औजार, माथे पे पसीना। दूसरों की आसाइश पर अपना आराम कुर्बान करने और खुद धूप झेल कर औरों को छांव देने वाले को मजदूर कहा जाता है। जी हाँ, वो मेहनतकश जो मुल्क की तरक्की की बुनियाद और मईशत की बुनियादी इकाई है। खेत खलियान, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, दफातर सब उसी के दम से आबाद हैं और जिंदगी पर इसका हक भी उतना ही है जितना दूसरों का। यकम मई जहाँ हमें 1886 में शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं ये दिन इस अज़्म की तजदीद का दिन भी है कि मजदूरों को उनके हकूक की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। हमें एक हेल्दी पाकिस्तान के लिए एक हेल्दी लेबर चाहिए और हेल्दी लेबर के लिए उनकी जो लेबर कंडीशंस हैं उन पर नज़र रखी जाए, खुद गवर्नमेंट लेवल पे भी रखी जाए। इस तरह ऐसे इदारों को जो है इन्हेंस किया जाए, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिखा जाए, उन पर नज़र रखी जा सके। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो ये एक इट्स अ जॉइंट वेंचर, जो निजी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने लोगों को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको अच्छी कंडीशंस दें, अच्छी सैलरीज दें, अच्छी जो उनको एजुकेशन, उनके बच्चों को भी इवन फैसिलिटीज़ दें, उनको जो है मेडिकल की सहूलत दें और एक अच्छा लाइफस्टाइल दें। आज पूरी दुनिया में इंसानी वसाइल की तरक्की के इदारे मजदूरों के लिए बेहतर औकात कार, मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बुनियादी सहूलतों की फराहमी जैसे इक़दामात पर तवज्जो दे रहे हैं ताकि मजदूरों की इस्तेदाद कार से भरपूर इस्तेफादा किया जा सके और माशी तरक्की के अमल में उनके किरदार को मजीद फाल किया जा सके। पाकिस्तान में मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल हौसला अफजा है। लेबर डिपार्टमेंट और मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ताहम इस हवाले से अभी मजीद इक़दामात की जरूरत है। खुसूसन गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन, उनके लिए मुनासिब आमदनी और सर्विस स्ट्रक्चर और जिंदगी की बुनियादी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाना होगी। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कारखानों, खेतों, खलियानों और कानों में अपना खून पसीना जलाकर हमारी ज़िंदगियों में आसानियां लाने वाले हमारे मोहसिन, हमारे मज़दूरों को सलाम। आज मेहनत कशों का अज़मत को उजागर करने के लिए आलमी यौम मज़दूर मनाया जा रहा है। मरियम मलिक की रिपोर्ट देखिए। जो अपने खून के ईंधन से सबकी जिंदगी का पहिया घुमाते हैं, जिसकी मेहनत पहाड़ों का सीना काटकर रास्ते बनाती है, जिसके हाथ दरियाओं का रुख मोड़ते हैं, ये मजदूर नहीं मोहसिन हैं। 1886 में शिकागो के मजदूरों की लासवाल कुर्बानियों की याद में हर साल 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। मेहनत के औकातकार, मुनासिब तनख्वाह और उसकी बर वक्त अदायगी मजदूर तबके का बुनियादी हक, जिसके लिए वो आज भी बरसरे पैकार नजर आता है। पाकिस्तान में मजदूरों के लिए कम से कम उजरत बढ़ाने समेत मुख्तलिफ इक़दामात से मजदूरों के हकूक़ यकीनी बनाने की सिमत अहम पेशरफ्त सामने आई है, मगर मज़ीद बेहतरीन लाने की ज़रूरत है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अब लोगों को अब सच बोलना ही पड़ेगा। माजी में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट को आज तक बेनकाब नहीं किया गया। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगले 10 साल की मनसूबाबंदी इदारों में बैठे लोगों के साथ मिलकर की। सहूलतकार इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कोई मत हमें ये भाषण दे कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। और भाई, हमें तो 3 दफा इलेक्शन से बाहर रखा, हम उस वक्त ना भागे जब हमारी क्यादत को नाहल किया गया। आप चौथी दफा भी 2023 में अगर हमारी क्यादत को बाहर रखकर आप कहोगे ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये उसी मनसूबाबंदी का दूसरा पार्ट है कि आप नवाज शरीफ को इंतखाबी अमल से बाहर रखकर आप 2023 के इलेक्शन करवाओगे तो कौन मानेगा। हां, हम पेट्रोल बम तो नहीं फेंकेंगे, मगर हम किसी पेट्रोल बम फेंकने वाले को भी मनमानी नहीं करने देंगे और उसके सहूलतकारों को मजीद पाकिस्तान के साथ खलवाड़ नहीं करने देंगे। और नाज़रीन, रवां साल मुल्क में गंदम की 2 करोड़ 75 लाख मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है, जो गुज़श्ता 10 बरस में सबसे ज़्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पाकिस्तान गंदम दरामद करने वाला मुल्क बन गया। बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम की बम्पर पैदावार मौजूदा हुकूमत के बरवक्त फैसलों और बेहतरीन गवर्नेंस का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी होने के बाद गंदम बरामद करना हदफ है।
हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने बताया कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करते हुए हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 10-10 रुपये लीटर कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 1 से 15 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म साहब की हिदायत है स्टैंडर्ड के कोशिश करें कि आवाम की जो है रिलीफ जितनी हम दे सकें वो दें। हाई स्पीड डीज़ल है उसमें 5 रुपये की कमी 1 मई से की जा रही है। वो 293 रुपये की जो अभी प्राइस है वो 288 रुपये चली जाएगी। जो पेट्रोल है उसके ऊपर कोई इजाफा नहीं किया जा रहा, हालांकि जो तजवीज़ थी वो इजाफे की थी, वो 282 रुपये ही रहेगा और उसमें कोई प्राइस की तब्दीली नहीं है। जहाँ तक मिट्टी का तेल है जो कि 186 रुपये 7 पैसे पे है, उसको 10 रुपये कम करके 176 रुपये 7 पैसे किया जा रहा है। और जो लाइट डीजल ऑयल है वो उसको 174 रुपये 68 पैसे से 10 रुपये की कमी के साथ 164 रुपये 68 पैसे किया जा रहा है। और मुस्लिम लीग नून हज़ार डिवीजन के सदर सरदार शाहजहां यूसुफ ने कहा है कि सेहत के शोबे में रफ़ाई इदारों की तरफ से आवाम को दी जाने वाली सहूलियात काबिल तकलीद हैं। मानसहरा के नवाही इलाके गांधिया में हस्पताल के तोसी मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि माजी की सूबाई हुकूमत ने न मानसहरा में किसी शोबे पर तवज्जो दी और ना ही कोई बड़ा पैकेज दिया। उन्होंने कहा कि इलाके के अवाम का हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का क़याम एक दरीना मुतालबा था जिसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाया तकमील तक पहुँचाया है। इस मौके पर उन्होंने मेहमानों में सिविलियंस तकसीम किए और हस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों में फराहम की गई सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पायदार तरक्की के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। फैसलाबाद के इलाके ठेकरीवाला में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम बड़े तरक्याती मनसूबों का सेहरा मुस्लिम लीग नून को जाता है। PTI की नाअहली की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया और माशी तबाही हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑडियो लीक्स ने साकिब निसार का मनफी किरदार अयां कर दिया। वक्त ने साबित किया कि बाबा रहमते दरअसल बाबा जहमते था। उस वक्त का चीफ जस्टिस साकिब निसार जो कहता था कि मैं बाबा रहमते बन गया हूँ, लेकिन दरअसल वो पूरी कौम के लिए बाबा रहमते बन गया। उसके बेटे की ऑडियो एक जो है वो लीक हुई है, उसमें वो PTI के टिकट का सौदा करते हुए एक बंदे को टिकट दिलाने की बुनियाद पे उससे 1.5 करोड़ रुपया जो है वो तलब कर रहा है। इतने आला मुनासब पे बैठे लोग, उनका किरदार यही सामने आ रहा है। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो साजिश हुई उसके पीछे कौन था? यही बाबा रहमते था। इन लोगों ने साजिश की और साजिश करके इन लोगों ने जो है वो मुल्क का भट्ठा बिठाया और इस एक फितना सिफ्त इंसान को जो है वो इन्होंने जो है वो हुकूमत में बैठा दिया। ये एक फितना है, इसकी ये सोच है, ये जो है वो न किसी के साथ बैठने को तैयार है, न किसी की इज्जत करने को तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पार्लियामेंट ने अपना मौक़िफ़ दे दिया। आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि तमाम इदारे आईनी दायरे कार में रहते हुए काम करें। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को मंजरनामे से हटाने और इमरान खान को मुसल्लत करने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो गए। तफसील जानते हैं अली गुल से। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि साकिब निसार ने खुद एतराफ़ किया कि ऑडियो लीक में उनके बेटे की आवाज़ असली है। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि साकिब निसार और उनका ख़ानदान एक्सपोज हो चुका है। साकिब निसार साहब के हवाले से और उनकी जो गुफ्तगू है, इनकी गुफ्तगू जो है वो अगर आप ऑडियो जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है उससे पता लगता है कि इनका ज़हन जो है वो कितना पोल्यूट था। अवाम नवाज शरीफ की दुश्मनी में वो कितनी दूर से दूर चले गए और उनके ज़हन में जो बीज बोए गए हुए थे वो जब वो अदलिया में मौजूद थे उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया उसका सारे के सारे सबूत जो है वो सामने आ गए। वज़ीर दिफा ने कहा कि इमरान खान आए रोज यू टर्न लेते हैं। पाकिस्तान को जानबूझकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला गया। पहले इन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए, जब इस्तीफे मंजूर नहीं हो रहे थे कोर्ट में गए कि जी हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। जब इस्तीफे मंजूर हो गए उसके बाद कोर्ट में कहे कि जी हमारे इस्तीफे जो है उनकी मंजूरी रिवर्स की जाए। यानी पिछले 1 साल में
इमरान खान क्या सोचता है, क्या कहता है, किसी को समझ नहीं आ सकी। इक़्तिदार की जंग जो है, या इक़्तिदार की भूख जो है, या इक़्तिदार से दूरी जो है, जो खा रही है इसको, इमरान खान को उसकी वजह से मुल्क में जो हालात, माशी हालात जो हैं, जो छोड़ के गया था, इक़्तिदार में ना होने की वजह से और बर्बादी कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सी पैक मंसूबे को सोची समझी साजिश के तहत नाकाम बनाने की कोशिश की गई। पीटीआई के वज़रा खुद इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। सियासी तौर पे जितनी मूव्स उसने पिछले 1 साल में की हैं, सारी की सारी मूव्स जो है ना, वो कोलैप्स की हैं और इसने रिवर्स की हैं उनको। अगर सी पैक पे उसी स्पीड में, जिस स्पीड से नवाज शरीफ ने उसको स्टार्ट किया था, चलता रहता, आज हमारी मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी। बल्कि उनके वज़रा ने, इमरान खान के वज़रा ने ये बाकायदा जो है बयान दिया कि हमें सी पैक की जरूरत नहीं है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इदारों को अपनी आईनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में जारी बहरान की वजह इमरान खान की जिद है। इस शख्स ने इक़्तिदार की हवस और इंतशार के लिए 2 असम्बलियाँ तहलील कराईं। नारोवाल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान हैंडलर्स के जरिए इलेक्शन जीतना चाहता है। हमारा मौक़िफ़ है कि मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात हों। तफसील बता रहे हैं यासिर हुसैन। मनसूबाबंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक शख्स की हमाकत और अना की वजह से मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेला जा रहा है। हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे। कौमी और सूबाई असेंबलियों को मुद्दत पूरी करने दी जाए। सिंध, बलोचिस्तान और कौमी असेंबली को एक शख्स की हमाकत की सजा नहीं दी जा सकती। अगर एक शख्स ने अपनी सियासी तखरीबकारी या सियासी हमाकत से 2 असेंबलियां तोड़ी हैं, तो इसमें सिंध और बलूचिस्तान के अवाम का और उनके नुमाइंदों का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान के आइन की मंशा के मुताबिक पाकिस्तान के वफाक को कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि ये इलेक्शन एक दिन हो। एहसन इकबाल का कहना था कि लाडले ने 4 साल मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान एक फितना है जो कौम के सामने बेनकाब हो चुका है। उनका कहना था कि एक मखसूस जमात के फैसलों को मुल्क पर मुसल्लत न किया जाए। जो शख्स अपने पार्टी के टिकट बेचता है, वो ये कहे कि मैं इस मुल्क में दयानतदारी लेकर आऊंगा, वो एक झूठ है। और अब इंशाअल्लाह जब भी इलेक्शन होगा, हम इमरान खान को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि मुल्क को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। हम तवानाई और IT के शोबे को फरोग देकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुशीर उमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कारा कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को बहरानों में धकेला। तब्दीली के दावेदार बताएं उनकी 4 साल की कारकर्दगी क्या रही। लाहौर में डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं, उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। तफसील राना इफ्तिखार अहमद से जानिए। मुशीर अमूर कश्मीर कमरुज़्ज़मान कायरा ने लाहौर में पीपल्स पार्टी की डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि हमारे मुखालफिन अवाम में झूठ फैला रहे हैं। इमरान खान ने रोज यू टर्न लिए, अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए और मुल्क को बहरानों का शिकार किया। 5 साल के बाद इमरान खान आज नए वादे कर रहा है। लोग पूछते हैं, भाई ये बताओ खैबर पख्तूनख्वा में तुम 9 साल हुकूमत में रहे हो, क्या कारकर्दगी है? पाकिस्तान में 4 साल हुक्मरान रहे, कोई एक प्रोजेक्ट अगर इमरान खान के अपने किरदार में क्रेडिट में है तो बता दो। इमरान खान कौमों की तकदीरें यूं नहीं बदला करती। पाकिस्तान की इस वफाक को मजबूत करने के लिए ये बड़े चैंपियन आए ना, सबसे पहले पाकिस्तान वाले भी आए, ये मदीना की रियासत के ढोल रचाने वाले भी आए, उसे भी इक़्तिदार मिला, ना मदीना याद रहा ना मदीने की रियासत याद रही। अरे तुम कैसे लीडर हो, नाम मदीने की रियासत का लेते हो और हर बात पे यू टर्न लेते हो। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी और मुत्तफिका आइन दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं बल्कि झूठ, प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वालों से है। डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस से फारूक सईद और पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि PTI और साकिब निसार का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि साकिब निसार ने इमरान नियाज़ी से मिलकर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया।
शेखपुरा की तहसील मुरीदके में मीडिया से बात करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि PP 137 शेखपुरा के टिकट से मुतालिक PTI के उम्मीदवार और साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स ने साकिब निसार और इमरान खान गठजोड़ को मजीद आयां कर दिया है। साजिशी अनासर बेनकाब हो रहे हैं और बादशाह आवाम को हकीकत का पता चल रहा है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इमरान खान की बादशाहत या सिक्का शाही नहीं है कि वो जो कहे वही माने। PTI सियासी जमात नहीं, झूठों का टोला है। ये किसी भी वादे पर अमल नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत तवक्को करती है कि तमाम सनतकार और ताजर बरादरी मजदूरों को उनकी उजरत बर वक्त अदा करेगी। गवर्नर हाउस लाहौर में मारूफ सनतकार मियां तलत महमूद की क़यादत में वफ़द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम, आईन और कानून की बालादस्ती और अवाम की फलाह बहबूद हुकूमत की तरजीह है। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने बेहतरीन हिकमत अमली से मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और अब मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आना शुरू हो गया है। मियां तलत महमूद ने कहा कि उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत का अगला बजट ताजरों के कारोबार में तरक्की और रिलीफ का बायस बनेगा। मियां तलत महमूद ने टैक्स इस्लाहात पर ताजर बरादरी की तरफ से हुकूमत से ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। वादी नीलम के बाला इलाके तावत से केल आने वाली जीप फलावी के मकाम पर दरिया नीलम में जा गिरी, जिससे 2 अफराद जाँ बहक और 5 शदीद जख्मी हो गए, जबकि 7 अफराद अभी तक लापता हैं। तफसीलात के मुताबिक जीप में 12 सयाहों समेत 14 अफराद सवार थे। हादसा फनी खराबी और सड़क की खस्ताहाली के बायस पेश आया। जख्मियों और लापता अफराद में से 12 का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि सैर व तफरीह की घर से नीलम आए थे। 22 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये मुल्क शहीदों की कुर्बानियों का समर है। कोयटा में बलूचिस्तान शहादा फोरम की तरफ शहादाए वतन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैली निकाली गई। शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी के फर्जंद नवाबजादा मीर जमाल रईसानी की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से प्रेस क्लब तक रैली मीर फरीद रईसानी की क़यादत में पहुंची। मुकर्रिरीन का कहना था कि शहादा के लहू को किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीदों की कोशिशें हमारा फख्र हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज नए जमशुदा अजला खुसूसन बाजोड़, मोहम्मद और खैबर अजला में सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां है। इस सिलसिले में तीनों अजला में बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। खार, साफ़ी और लंडी कोतल समेत तीनों अजला के दूर दराज इलाकों में 50 से ज़ायद बुनियादी सेहत के मराकज़, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर्स और डिस्पेंसरियाँ बना दी गई हैं। जिन इलाकों में सेहत की सहूलियात मैसर नहीं, वहाँ बाकायदा तौर पर फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा रहा है। गुज़िश्ता कलील मुद्दत के दौरान इन अजला में 100 से ज़ायद फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया जा चुका है, जिनमें हज़ारों की तादाद में मरीजों के मुफ्त इलाज के साथ साथ फ्री अद्वियात भी दी गई। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज इंसदाद पोलियो मुहिम में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं। और भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में ग्रुप 20 के इजलास से कबल श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान लोगों को हिरासा किया जा रहा है। मकामी लोगों ने सहाफ़ियों को फ़ोन पर बताया कि भारतीय फौजी और पुलिस एहलकार रात के वक्त उनके घरों में घुसकर मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को कतार में खड़ा करते हैं और नौजवानों के बारे में तफसीलात पूछते हैं। मकामी लोगों ने ग्रुप 20 के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो मोदी हुकूमत के जाल में न फंसे, जिसने मकबूजा इलाके में सब अच्छा है दिखाने के लिए मुसलसल फौजी कार्रवाइयों से कश्मीरियों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। फौजियों ने पहुंच और राजौरी अजला में एक आलम दीन समेत मुतादिद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आलम दीन, जिसकी शनाख्त मौलवी मंजूर के तौर पर की गई है, दौरान तशद्दुद जाँ बहक हो गया है। भारतीय पुलिस ने जिला राजौरी में वकार हुसैन बजरान नामी एक शख्स को काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा है कि पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से मुनसिफाना जिद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल और भरपूर हिमायत कश्मीरियों के आज़म को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों का मोहसिन और सफ़ीर है और वो हर मुश्किल घड़ी में एक मजबूत चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरों और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद के लिए प्रोपेगेंडे में सबको पीछे छोड़ दिया। हाल ही में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें ये देखा जा सकता है कि एक कब्र पर लोहे की जाली है और उस पर ताला लगा हुआ है। इल्ज़ाम लगाया गया कि यह कब्र पाकिस्तान में है, जहां वालिदैन अपनी बेटियों की कब्रों को ताले लगाते हैं ताकि उनकी लाशों को ज़्यादती से बचाया जा सके। इस तस्वीर को कई बड़े भारतीय अशाती इदारों ANI,
وی ٹائمز، نیوز 18، ٹائمز آف انڈیا، دی پرنٹ، ٹائمز ناؤ اور NTDV سمیت دیگر چینلز نے خوب اچھالا۔ حقیقت سامنے آئی تو معلوم ہوا کہ پاکستان کو نشانہ بنانے کے لیے جو تصویر استعمال کی جا رہی ہے وہ دراصل بھارت کے شہر حیدرآباد میں واقع قبرستان کی ہے۔ مقامی رہائشی کے مطابق یہ قبر ایک بوڑھی عورت کی ہے جو 70 کی دہائی میں فوت ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے نے اسے دفن کیے جانے کے تقریباً 40 دن بعد قبر پر جنگلہ بنایا تھا تاکہ اس کی قبر میں مزید میتیں دفن کرنے سے روکا جا سکے۔ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی گاڑی پر بھارتیہ جنتا پارٹی کی انتخابی مہم کے دوران ایک خاتون نے موبائل فون دے مارا۔ واقعہ نریندر مودی کے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے BJP کی انتخابی مہم میں حامیوں سے ملاقات کے دوران پیش آیا۔ نریندر مودی میسور میں اپنی انتخابی مہم کے دوران پارٹی کارکنان اور حامیوں سے ملاقات کر رہے تھے جب ایک شہری نے ان کی گاڑی پر موبائل فون پھینکا۔ اس واقعے سے وزیر اعظم مودی کی سیکیورٹی سے متعلق سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلا کا عمل جاری ہے۔ آج 93 پاکستانی PIA کی پرواز کے ذریعے جدہ سے اسلام آباد پہنچے۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام اور وزیر اعظم سمندر پار پاکستانی ساجد طوری نے استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امیر مقام نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اس مشکل میں پوری پاکستان کی گورنمنٹ اور عوام ان لوگوں کے ساتھ ہے اور ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے ملک میں واپس۔ تو ابھی تک آج 93 لوگ یا آ گئے یا ریسیو کر دیا۔ پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو وہیں سے پاکستانیوں کو نکالنے کا بندوبست بہت آسان طریقے سے کیا اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر ساجد طوری نے کہا کہ سوڈان سے پاکستانیوں کے انخلا کا عمل جاری ہے۔ سوڈان میں پھنسے 93 پاکستانی آج PK 754 کے ذریعے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ اب تک 636 پھنسے ہوئے پاکستانی وطن واپس لائے گئے ہیں اور PAF کی 5 خصوصی پروازوں کے ذریعے سوڈان سے جدہ کے راستے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پہنچے ہیں۔ الحمدللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سوڈان سے تقریباً 1000 پاکستانیوں کو نکال لیا جائے گا۔ فارن آفس نے اس میں کافی مثبت پازیٹیو رول ٹائم پہ ادا کیا ہے۔ جس طرح سوڈان سے ہے کہ سارے بائی سمندر جو ہے نا سعودی عرب پہنچ جاتے، پھر سعودی عرب کے بعد ایئر فورس والوں نے کراچی میں ہماری UPF والے پیش ہے ہر ان کو ریسیو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر اسلام آباد پہنچنے والے پاکستانیوں نے بر وقت حکومتی ایکشن اور انخلا کے عمل میں تعاون اور سہولیات کی فراہمی کو سراہا۔ امبیسی کا رویہ بہت اچھا رہا ہے، بہت زیادہ ان لوگوں نے کوآپریٹ کیا ہے۔ سوڈان سے پاکستان میں نکالا گیا اور ان کی مہربانی اور شہباز شریف کا شکریہ۔ حکومت کی طرف پورا تعاون ملیا الحمدللہ، اہی اچھے طریقے نال آسان طریقے نال اتوں نکلے، سانو کوئی پرابلم نہیں بنی۔ امبیسی والے نے سارے نال بہت تعاون کیتا ہے، کھانا دیتا ہے، رہائش دیتی ہے خرطوم دے وچ۔ سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کو پہلے مرحلے میں سوڈان کی بندرگاہ تک پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں بندرگاہ سے بحری جہاز کے ذریعے جدہ بذریعہ ہوائی جہاز پاکستان لایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان ہر گزرتے دن کے ساتھ ٹوٹ رہا ہے۔ جنگی طیاروں نے خرطوم پر تازہ بمباری کی ہے، جبکہ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان لڑائی تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت میں 72 گھنٹے کی جنگ بندی معاہدے کے باوجود تازہ فضائی حملوں اور توپ خانے سے فائرنگ کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ حالیہ 2 ہفتوں میں جنگ بندی کے متعدد معاہدے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جھڑپیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ملکی فوج اور پیراملٹری گروپ ریپڈ سپورٹ فورسز نے ان تازہ جھڑپوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کی ہے۔ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جنرل عبد الفتاح البرہان کی قیادت والی ملکی فوج اور ان کے حریف بن جانے والے سابق نائب محمد حمدان دکلو کی قیادت والے نیم فوجی دستے کے درمیان 15 اپریل سے جنگ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس نے سعودی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب ملک ٹوٹ رہا ہو تو کسی کو اقتدار کے لیے لڑنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस आज दोहा में एक इजलास के दौरान बैनुल-अक़वामी सफ़ीरों से मुलाकात करेंगे और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। तालिबान की अबूरी हुकूमत की जानिब से लड़कियों को स्कूल जाने और ख़वातीन को काम करने से रोकने के इक़दाम से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल के मुताबिक इजलास में तालिबान हुकूमत की क़यादत को शिरकत की दावत नहीं दी गई। उधर तालिबान के नायब वज़ीर मोहम्मद अरसला खरोटी ने कहा है कि जब तक वो अफ़गान हुकूमत के साथ मुनासिब ताल्लुकात कायम नहीं करते और हमें कोई नुमाइंदगी नहीं देते, ऐसी मुलाकातें और इजलास ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे। तुर्क इंटेलिजेंस फोर्सेस ने शाम में कार्रवाई करते हुए दाइश के सरबराह अबुल हुसैन अल कुरैशी को हलाक कर दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि उनकी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने दाइश के सरबराह को शाम में ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया है। उन्होंने बताया कि दाइश के सरबराह के खिलाफ कार्रवाई शाम के इलाके जंदारेस में की गई है। तो सदर का कहना है कि तुर्की की कौमी इंटेलिजेंस तंजीम काफ़ी अरसे से दाइश के सरबराह अबुल हुसैन अल हुसैनी कुरैशी का ताक़ुब कर रही थी। मैक्सिको के मगरबी इलाके में एक बस चट्टान से गिर गई, जिससे 18 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया है कि ये बस रात के वक्त एक शाहराह पर जाते हुए 15 मीटर बुलंदी से दरिया में जा गिरी। हलाक होने वालों में 11 खवातीन और 7 बच्चे शामिल हैं। 11 बच्चों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सऊदी अरब के तारीखी शहर ताइफ में गुलाब फेस्टिवल सज गया, जिसमें गुलाब के दर्जनों स्टॉल सजाए गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद दिलचस्पी ले रही है। सऊदी अरब का शहर ताइफ गुलाब की काश्त से पहचाना जाता है, जहां 15 रोजा सालाना गुलाब फेस्टिवल शुरू हो गया है, जिसमें गुलाब के फूलों के दर्जनों स्टॉल लगाए गए हैं। मकामी पार्क में सजने वाले गुलाब फेस्टिवल में हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शहरी शिरकत कर रहे हैं, जिनकी दिलचस्पी के लिए नजदीकी पहाड़ों और इमारतों को 3D लाइट्स के जरिए गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया है, जिससे लोग खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। भारत में महकमे जंगलात के एहलकारों ने 6 अफराद को हलाक करने वाले चावल के शौकीन हाथी को सकूनावर अद्वियात देकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अरीको मबान के नाम से मशहूर नर हाथी भारत की जनूबी रियासत केराला में चावल और अनाज की दुकानों पर धावा बोलने के लिए शोहरत रखता है। जंगलात के 150 एहलकारों पर मुश्तमिल एक टीम ने हाथी को पकड़ा, जिसने सुकूनावर अद्वियात की 5 गोलियां लगने के बावजूद इन एहलकारों के सामने भरपूर मज़ाहमत की। ट्रक में डालने के बाद इस हाथी को GPS कॉलर लगाकर वाइल्ड लाइफ रिजर्व मुंतकिल कर दिया गया। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल लिए मैं हूँ आपके साथ कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। तहम इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब, सिंध, दीर ज़ेरी और सिमिंगली में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। और अब आपको गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करते हुए बताएं कि भक्खर में 37, ठट्ठा 34, सखर 33, नवाबशाह 32, जबकि मोहिंजो दाड़ो में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही। शुक्रिया कासिम। और बढ़ते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों के जाने। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्क ने गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के तदारुक के लिए ज़िले की मुख्तलिफ चेक पोस्टों का मुआयना किया। उन्होंने मजमूई तौर पर 12,213 बोरियां गंदम कब्जे में लेकर सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दी हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने तक ये कार्रवाई जारी रहेंगी। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा खुराक के अफसरान को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी जारी की।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत की हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया ननकाना साहिब ने गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह तवक्कल वट्टू की सरबराही में खुसूसी टीम ने मकामी राइस मिल में गैर कानूनी तौर पर रखे गए गंदम के 50 किलोग्राम वाले 22,000 से ज़ायद थैले कब्जे में ले लिए, जिनकी मालियत 10 करोड़ रुपए से ज़ायद है। डिप्टी कमिश्नर मियां रफ़ीक एहसन ने कहा कि अब गंदम सरकारी सेंटर्स पर न लाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और थाईलैंड की तरफ से लाहौर के तारीखी अजायब घर को कदीम बुद्धा के मुजस्समा तोहफे में दिया गया है। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। लाहौर का तारीखी अजायब घर हजारों साल पुरानी तहजीबों की दास्तान समेटे हुए है। इसमें मौजूद मुगलिया आर्ट गैलरी और दीगर गैलरीज में रखी गई नवादरात तारीखी तहजीबों को समझने में अहम किरदार अदा करती है। खुसूसन कंधारा आर्ट गैलरी में यूनानी, ईरानी और मुकामी असरात से मुंसलिक नवादरात का बेशबहा खजाना है। थाईलैंड की हुकूमत की तरफ से इस कदीम बुद्धा के मुजस्समे का इजाफा एक अहम पेशरफ्त है। अजायब घर में होने वाली तकरीब में थाईलैंड के सफीर मिस्टर शाकट और म्यूजियम के डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान ने शिरकत की और बुद्धा मुजस्समा पेश करने के दस्तावेज पर दस्तखत किए। We would like to donate our personal collection of this Buddha statue to be housed in the beautiful Lahore Museum. Pakistan consider our second home, and your people are very kind to us. So I would like them to see this statue and also the rest of the beautiful artifact that you have been hosting. ये जो बुद्धा का इन्होंने मुजस्समा तराशा है, ये थाईलैंड के एक बहुत मशहूर मुजस्समा साज का बनाया हुआ है और ये हाल ही में बनाया है और ये अब लाहौर अजायब घर की मुस्तकिल जीनत रहेगा। इस मौके पर अजायब घर में मौजूद अफराद ने मुख्तलिफ कीमती धातों से बनाए गए बुद्धा के इस मुजस्समे को बेहद पसंद किया और कहा कि इससे पाकिस्तान और थाईलैंड के सकाफती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। लाहौर म्यूजियम में जो कलेक्शंस हैं, ख़ासतौर पे गंधारा गैलरी, बुद्धिस्ट गैलरी, वो बहुत ज़्यादा रिच है और हिस्टोरिकली भी बहुत ज़्यादा रिच है और उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि एक बेहतर जगह को चूज़ किया है अपने स्कल्पचर को माउंट करने के लिए। यूँ तो अजायब घर में मौजूद बुद्ध के मुख्तलिफ मुजस्समे हमेशा से ही मुकामी और गैर मुकामी सयाहों की तवज्जो का मरकज रहे हैं। ताहम थाईलैंड की तरफ से मिलने वाला यह नया शहकार तारीख से उन्स रखने वालों को एक बार फिर अजायब घर ले आएगा। पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान कदीम सफारती ताल्लुकात हैं और इस तोहफे से पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान सकाफती ताल्लुकात और मजीद मजबूत होंगे। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। कराची में नशे के आदी अफराद शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं सैयद जहांगीर अली की रिपोर्ट। कराची मुल्क का मुआशी हब होने के साथ साथ मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वहीं इस शहर के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। इन मसाइल में सबसे अहम मसला नशे के आदी अफराद हैं, जो नशे की तलब को पूरा करने के लिए कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का बाइस बन रहे हैं। ये अफराद हिफाजती तौर पर लगाए गए जंगले, लोहे की जालियों, अंडरग्राउंड केबल्स को खोद कर निकालते हैं और इन्हें सस्ते दामों कबाड़ियों को बेचते हैं। कराची में आदी जराइम पेशा अफराद की बड़ी तादाद दरअसल नशे के आदी अफराद हैं, जिससे शहर में मंशियात के अड्डे और स्ट्रीट क्राइम यकसा तौर पर बढ़ रहे हैं। शहर में 60% से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में नशे के आदी अफराद मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। कराची में एंट्री के काफ़ी रास्ते हैं, तो गाए बगाए हम उन पे भी वॉच रखे हुए हैं। वहाँ से भी सप्लायर्स, बड़ी बड़ी खेपें मिलती हैं। अभी रिसेंटली भी एक बहुत बड़ी खेप हमने जो ड्रग्स की है वो गिरफ्तार की है और उनके काफ़ी बड़ा हॉल ड्रग्स का मिला है। इन 3-4 महीनों में तकरीबन 50% के करीब इसका टारगेट 4 महीनों में मुकम्मल किया है। नशे के आदी अफराद के लिए हमें मजीद बहाली मराकज़ कायम करने होंगे। इनको चाहिए कि पूरी कार्रवाई की जाए, ये बंदे को पकड़ के यहाँ से जितने भी लोग हैं यहाँ पे इसकी इलाज किया जाए बाकायदा। ये नशा अब यहाँ लोग हैं ना, इनको ख़त्म करना चाहिए। लोगों को भी नुकसान देते हैं, आने जाने को भी नुकसान देते हैं, लूट मार करते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि कराची में मंशियात की सप्लाई ख़त्म करने के लिए पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर एक्शन करे और मंशियात के खात्मे के लिए सरकारी सतह पर बहाली के मराकज़ कायम किए जाएँ। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और आज़ाद कश्मीर में पंचक्कियों या जंदर के जरिए गंदम और मकई से आटा बनाने के लिए सदियों पुराना तरीका इख्तियार किया जाता रहा है। दौर जदीद में कश्मीरी तहजीब व तमद्दन की अक्कास करता ये खूबसूरत वर्सा अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है।
रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में किसी ज़माने में जंदर बड़ी अहमियत का हामिल हुआ करता था। हर खास आम का पंच चक्की या जंदर से वास्ता ज़रूर पड़ता था, क्योंकि गंदम और मकई की पिसाई के लिए जंदर ही चला करते थे। बिजली या ईंधन से बेनियाज जंदर इस तरह से चलता है कि पानी को तेज़ बहाव में लाकर लकड़ी से बने पंखे पर गिराया जाता है, जो कि पत्थर के भारी पाटों को तेज़ी से घुमाता है, जिसकी ज़द में आने वाले गंदम या मकई के दाने पिसकर आटे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में पहले ये जंदर जा बजा मिलते थे, फिर मशीनों का दौर चला तो जंदर की ये कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगी। बुनियादी तौर पे एक कदीम तरीका था जो आटा पीसने के लिए, जो अभी फ्लोर मिल आपकी, उसका एक पुराना मॉडल है ये, और ये ऑर्गेनिक जो फूड था आपका, उसकी ये आखिरी फॉर्म रह गई अब जो 50 साल की पहले हमें जंदर चला रही हैं, हमें और जंदर ये खत्म होने जरूरत। तहम अब भी गांव के पुराने लोग जंदर का आटा रगबत से खाते हैं। यही वजह है कि आज़ाद कश्मीर के देहात में अब भी ये पंचक्कियाँ या जंदर मौजूद हैं, जो मकामी सतह पर खुराक की ज़रूरत पूरा करती हैं। रोज़गार का जरिया होने के साथ साथ ये जंदर एक सकाफती वर्से की हैसियत से भी सयाहों के लिए बाइसे कशिश हैं। दम तोड़ते हुए इस सकाफती वर्से की हिफाजत के लिए हुकूमतों के साथ साथ तहजीब व सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारों को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मालसी, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। लकी मरवत के सफ़ेद खरबूजे अपनी लज्जत, जायके और मिठास की वजह से मुल्क भर में मशहूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर ज़ेब मरवत। ये है लकी मरवत में पैदा होने वाले सफ़ेद खरबूजे, जो कि न सिर्फ लकी मरवत बल्कि खैबर पख्तूनख्वा समेत पंजाब और दीगर इलाकों के लोगों में भी अपनी मुनफरिद रंग और मिठास की वजह से काफी मशहूर है। जिले में तकरीबन 4000 एकड़ रकबे पर खरबूजे काश्त किए जाते हैं, क्योंकि लकी मरवत की जमीन खरबूजे की फसल के लिए नहायत मौजूद समझी जाती है। काश्तकारों का कहना है कि इलाके के वाहिद नहर मरवत केनाल की बंदिश की वजह से उन्हें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और अगर ये नहर फाल किया जाए तो खरबूजे की पैदावार में मजीद इजाफा मुमकिन होगा। हमारा हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि हमारे लिए पानी का बंदोबस्त किया जाए, मरवत केनाल को जल्द चालू किया जाए। खरबूजे की पैदावार में इजाफे के लिए महकमा ज़राअत मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है और सब्सिडी पे बीज वगैरह भी दिए जा रहे हैं ताकि खरबूजे की पैदावार में इजाफा किया जाए। लकी मरवत की सरजमीन पर पैदा होने वाली ये खरबूजे कुदरत की तरफ से इलाके के लिए एक सौगात का दर्जा रखती है, क्योंकि अपनी खास जायके और मिठास की वजह से ये रोजाना की बुनियाद पर मुल्क के दूर दराज मंडियों में भेजे जाते हैं और मकामी मईशत की तरक्की में भी अहम किरदार अदा करते हैं। हुकूमत और महकमा ज़राअत की मामूली सी तवज्जो जैसे इलाके में मरवत केनाल नहर की बहाली और बंजर जमीनों की काबिल काश बनाने से इसकी पैदावार में मजीद इजाफा मुमकिन होगा। ये खरबूजे अपने खास जायके और मिठास की वजह से न सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि मुल्की सतह पर भी अपनी मिसाल आप है। अनवर ज़ेब मरवत, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लकी मरवत।